All right, good morning, students. Today we're going to start with English chapter 3.2, The Night I Met Einstein. All right, this short story is written by Jerome Weidman. All right, Jerome Weidman from 1913 to 1998 was an American playwright and a novelist. उस orange box में देखो, शुरू के orange box में से मैं पढ़ रहा हूँ. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work, a musical drama titled Fiorello. He collaborated with George Abbott, Jerry Bock, and Sheldon Harnick for its music and lyrics. His book, I Can Get It For You Wholesale, has also been used for a movie of the same name. Alright, तो ये था जेरोम वाइडमैन के बारे में थोड़ा बहुत information. Alright, he won a Pulitzer Prize. Pulitzer Prize is one of those very prestigious, very famous prizes. Alright, for a musical drama titled Fiorello. Fiorello was the title of his musical. Musical क्या होता है? एक प्ले होता है जिसमें लेकिन डायलॉग्स बोले नहीं जाते, गाए जाते हैं. Alright, and he has collaborated with many famous people such as George Abbott, Jerry Bock, and Sheldon Harnick for his music and lyrics. और उसका एक बुक भी है, I Can Get It For You Wholesale, alright, which has been used for a movie as well. Alright, so Jerome Weidman is a very well-known personality. Alright, and this is a story of the night he met Einstein. Okay, so let's begin the story. What I'll be doing, students, is I'll be reading the story using self-monitoring. हम हमेशा self-monitoring use कर रहे हैं, इस बार भी self-monitoring use करेंगे. Alright, but at the end of this video, I want you to also take the textbook, read the story again, understand it on your own, and then answer the questions given. Alright, so when I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. Alright, अब ये philanthropist ये word क्या है मुझे पता नहीं. Let me just underline it. Okay, after a wonderful dinner, our hostess took us to a large drawing room. Chairs were being arranged. I'm arranging the chairs for a concert, my hostess said. We're going to listen to a very good pianist. Okay, now I'm going to stop right here. I'm going to think. When I was a very young man, Abhi, who's speaking? Who's the I here? Jerome Weidman. Alright, now what is he saying? Ki when he was a very young man, he was invited to dine at the house of a philanthropist. Alright, he was invited to dine yani to have dinner. Okay, at the house of a philanthropist. Alright, philanthropist का मतलब क्या हो सकता है? Now let's see, dinner के लिए बुला रहे हैं. Alright, and arranging the chairs for a concert, किसी के घर पे concert हो रहा है. Alright, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ही अमीर है. Alright, घर पे कॉन्सर्ट हो रहा है. वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. ऑलराइट, डिनर के लिए बुलाया है, मतलब किसी अमीर इंसान के घर पे जा रहे हैं. ऑलराइट, सो फिलैंथ्रोपिस्ट का ये मतलब हो सकता है कोई एक बहुत अमीर इंसान है, समवन इज वेरी वेरी रिच. ओके, you can check the meaning of that later in the dictionary or on Google. Alright, now what was happening? Chairs were being arranged in that room. Alright, जिस ड्राइंग रूम में जेरोम गया, उस रूम में चेयर्स अरेंज हो रहे थे और उसके होस्टेस ने, जो होस्ट था उस इवेंट का, उस रात का, उसने जेरोम को क्या बोला कि आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. एक बहुत अच्छे पियानो प्लेयर को हम सुनने वाले हैं. Though everyone else was happy, I was not. I did not understand classical music. I thought I was tone deaf. Alright. Now जेरोम क्या बोल रहे हैं कि everyone else was happy. Alright. अमीर लोग खुश होंगे क्योंकि उनको ये सब म्यूजिक के बारे में पता है, पियानो के बारे में. But I was not happy. I did not understand classical music. मुझे classical music जो समझ में आता ही नहीं है. Alright. I thought I was tone deaf. Tone deaf का मतलब क्या है? Tone deaf का मतलब तुम्हें सुर या ताल का कुछ पता नहीं है. Alright. तुम उसमें बहुत बुरे हो सुर और ताल को पहचानने में. Right? So I sat down so that I would not be impolite and waited for the concert to begin. वो फिर भी बैठ गया उधर, and so that he would not be impolite, ताकि वो rude ना हो. Alright? He did not want to be rude, so he sat down and waited for the concert to begin. I did not pay attention to the music after it began. What did Jerome do? Jerome said that he was not paying attention to the music after the concert began. Concert शुरू हो गया घर में, लेकिन वो उस म्यूजिक पे ध्यान ही नहीं दे रहा था. After a while, I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over. उसकी थोड़ी देर बाद ही कॉन्सर्ट में थोड़ा टाइम बीत गया तो जेरोम के आसपास वाले सारे लोग ताली बजाने लग गए. So what did he realize? That the piece was over. वो जो गाने का जो पीस था पियानो पे, वो खत्म हो चुका था. Just then I heard a gentle but firm voice saying, "You're fond of Bach?" I knew as much about Bach as I did about nuclear physics.
ऑलराइट. तो now we are on the third paragraph. Just then I heard a gentle but firm voice saying. तो उसने क्या सुना, उसने एक जेंटल वॉइस, जेंटल यानी बहुत सॉफ्ट वॉइस, लेकिन फर्म, फर्म यानी स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट बट स्ट्रॉन्ग वॉइस को कहते हुए सुना कि यू आर फॉन्ड ऑफ बाक, क्या तुम्हें बाक अच्छा लगता है. बाक कौन है? बाक इज अ वेरी फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन. ऑलराइट. नाउ what did Jerome think to himself? I knew as much about Bach as I did about nuclear physics. वो कहने लग गया कि मुझे बाक के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता है. व्हाट इज हैपनिंग हियर? जेरोम सार्कास्टिक बन रहा है, वो थोड़ा मजाकिया बन रहा है. क्यों? क्योंकि उसको न्यूक्लियर फिजिक्स भी नहीं पता, तो वो कंपैरिजन कर रहा है कि मुझे बाक के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता है. बेसिकली मुझे कुछ नहीं पता. ऑलराइट. सो हम लोग भी कैसे बोलते हैं ना कि हाँ हाँ, अगर तू अमिताभ को जानता है तो मैं भी अभिषेक को जानता हूँ. ऑलराइट. दिस इज अस मेकिंग फन और पोकिंग फन एट द अदर पर्सन. ऑलराइट. बट हियर जेरोम इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ कि मुझे भी बाग के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पता है. ओके. सो मूविंग ऑन. आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी so that I could get out of the situation. I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face. It was someone with a shock of white hair and a pipe. अभी he is very uncomfortable with the situation कि कोई उससे पूछ रहा है कि तुम्हें ये म्यूजिक पसंद है कि नहीं, क्लासिकल म्यूजिक. So he was going to say something ordinary, कुछ नॉर्मल बोल के वो निकलना चाहता था उस सिचुएशन से. So he turned in order to look at his neighbor. वो अपने दूसरे साइड के नेबर को देखने के लिए वो घूमा. And he saw a very famous face. It had a shock of white hair. मतलब उस जो चेहरा उसने देखा उसके सिर पे बहुत सारे सफ़ेद बाल थे. एंड अ पाइप, पाइप यानी जो स्मोकिंग के लिए वो पहले यूज़ करते थे ना लोग, एक वुडन वाला पीस होता था जिसमें लोग अपना तंबाकू डाल के उसको जला के स्मोक करते थे. ऑलराइट. सो दैट्स अ पाइप. I knew that I must tell this man the truth, and he looked at me as if my answer was very important. All right. तो जिस आदमी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें बाग पसंद है, उसी आदमी को देखते ही उसने रिकग्नाइज किया ये कोई फेमस है, इंसान है और इससे मैं झूठ नहीं बोल सकता. So he says that I realized that I knew that I must tell the truth. He looked at me as if my answer was very important. वो आदमी भी उसको ऐसे देख रहा था कि उसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरोम का आंसर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So what did Jerome say? I do not know anything about Bach, I said. I had never heard any of his music. He looked down surprised. तो जेरोम ने जब कहा कि मुझे बाक के बारे में कुछ नहीं पता, I've never heard any classical music, वो जो दूसरा आदमी जिसने सवाल पूछा है, he was very surprised. Okay? He said, you have never heard of Bach? He asked. He made it sound as if I have never taken a bath. उस आदमी ने इस तरह बोला कि जेरोम को म्यूजिक के बारे में इतना नहीं पता कि उसने नहाया ही नहीं है कभी ऐसा जिंदगी में, ऐसा उसको फीलिंग आ रहा था. ऑलराइट. सो I'd like to understand music so I could understand Bach, I said. But I am not able to, I am tone deaf. जेरोम क्या बोलता है फिर उसके रिएक्शन पे? वो बोलता है कि आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक, मुझे म्यूजिक समझना है सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बाक, ताकि मैं बाक जैसे बड़े म्यूजिशियन को समझ सकूँ, उसको जान सकूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता. आई एम नॉट एबल टू. आई एम टोन डेफ. टोन डेफ अगेन आई एम रिमाइंडिंग ऑफ द मीनिंग, जिसको सुर ताल का कोई पहचान नहीं है, सुर ताल का कोई बिल्कुल भी पहचान नहीं है. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट पेज. द ओल्ड मैन गॉट अप. ही सेड, यू विल कम अप विथ मी? ही आस्क्ड. I just remained seated. I'm requesting you to come up with me, he said again. तो ओल्ड मैन अचानक से उठ गया वो, and he said, you will come up with me? क्या तुम मेरे साथ ऊपर आओगे? He asked. So, लेकिन जेरोम क्या है, वो डर गया, वो बैठा रहा. Then again the old man asked and said, I'm requesting you to come up with me, he said again. So I went up with him. He took me to a room which had a gramophone in it and asked, what kind of music do you like? Gramophone क्या है? It's a musical instrument जहाँ से म्यूजिक बजता है. Alright, this is the gramophone right here. Okay, उसके ऊपर तुम एक छोटा सा डिस्क डालोगे, रिकॉर्ड डालोगे, ब्लैक कलर के सीडी जैसा आता है, तुमने पिक्चर्स में देखा होगा. उस सीडी को वहाँ पे डालोगे तो वहाँ से म्यूजिक प्ले होता है. Alright, what kind of music do you like? So he took Jerome, he took the writer to the room. वो उस ओल्ड आदमी ने जेरोम को एक रूम में लिया और उससे कहा कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? ऑलराइट. वेल, आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून. क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है स्टूडेंट? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पियानो होता है या वायलिन होता है या कोई सिर्फ
बिना वर्ड्स के सुर लगा रहा है, ऑलराइट, बट जेरोम को इस टाइप ऑफ म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऑलराइट. सो व्हाट डज ही से टू द ओल्ड मैन? ही सेज कि मुझे उस टाइप ऑफ म्यूजिक पसंद है जिसमें वर्ड्स है एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून, जहाँ पे मुझे ट्यून समझ में आता है, ऑलराइट. So Jerome is answering the old man. What does the old man do? He smiled and nodded, obviously pleased. You can give me an example perhaps? Alright? तो old man अभी भी confused है, तो वो भी Jerome से पूछता है कि can you give me an example? So I told him, I like anything by Bing Crosby. At once I could hear Bing Crosby's voice filling the room. Bing Crosby कौन है? एक और famous musician है, alright? But not a classical musician. Classical musician अलग होता है. ही इज अ पॉपुलर म्यूजिशियन, यानी पॉप म्यूजिक बनाता है. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी वॉट यू जस्ट हर्ड, ही सेड. तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उस ग्रामोफोन पे, उस म्यूजिक प्लेयर पे उसने वो बिंग क्रॉस्बी का नाम जेरोम ने लिया. तो जो राइटर ने नाम लिया उस बिंग क्रॉस्बी का जो सिंगर है, बिंग क्रॉस्बी जो सिंगर है, उसका नाम जब राइटर ने लिया तो ओल्ड मैन ने उसके गाने रूम में बजाने शुरू किए, ऑलराइट. तो और जैसे ही बजाने शुरू किए, ओल्ड मैन ने उससे पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट यू आर हियरिंग, ऑलराइट, व्हाट यू जस्ट हर्ड. तो जेरोम ने क्या किया, द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन, सो आई सैंग इट बैक टू हिम. उसने क्या किया, उसने वही गाने को ओल्ड मैन के सामने फिर से गाया, ऑलराइट. गाने के साथ साथ वो गाने लग गया. ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड. अभी ओल्ड मैन खुश हो गया. क्यों? क्योंकि उसने जेरोम को गाते हुए देखा, उसने राइटर को गाते हुए देखा, एंड ही सेड कि यू आर नॉट टोन डेफ. मुझे तुम्हारे गाने से पता चल रहा है कि तुम्हें म्यूजिक की परख है, तुम्हें म्यूजिक का पहचान है, राइट. सो आई टोल्ड हिम दैट दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, समथिंग दैट आई हैव हर्ड 100 ऑफ टाइम्स, सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग. लेकिन जेरोम क्या था, राइटर क्या फील कर रहा था कि ये गाना को मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि मैं इसे यूं ही गा सकता हूँ, ऑलराइट, और इससे ये प्रूव नहीं होता कि मुझे म्यूजिक का कोई पहचान नहीं है, ऑलराइट. वो जेरोम खुद में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है. व्हाट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द कैरेक्टर पर्सनालिटी है कि जेरोम जो है, जो राइटर जो है, इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. वो अभी भी सोचता है कि म्यूजिक के बारे में उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है. सिर्फ वो एक गाना 100 बार सुन चुका है, इसलिए वो गा पाया था उस एक गाने को, लेकिन बाकी के चीज़ों को वो नहीं पहचान सकता, क्लासिकल म्यूजिक को वो नहीं पहचान सकता. ओके, सो नॉनसेंस, सेड आइंस्टाइन, इट प्रूव्स नथिंग. अभी हमें ये ओल्ड इंसान कौन है हमें पता चला है, आइंस्टाइन है, ऑलराइट. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैव हर्ड अबाउट हिम इन सम वे और अनदर. नॉनसेंस, सेड आइंस्टाइन, इट प्रूव्स एवरीथिंग. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट arithmetic lesson in school? Suppose at your very first contact with numbers, your teachers had ordered you to work out a problem in, say, long division of fractions. Could you have done it? आइंस्टाइन क्या बोलता है, नॉनसेंस, बेकार है, तुम्हारी बात बिल्कुल झूठ है, राइट. इट प्रूव्स एवरीथिंग. तुम्हारे ये गाना गाने से मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुम्हें म्यूजिक का पहचान है. कैसे? नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रूव इट टू हिम. सो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट arithmetic यानी मैथमेटिक्स का लेसन इन स्कूल. सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स योर टीचर्स ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम. वो एग्जाम्पल दे रहा है, सिचुएशन दे रहा है जेरोम के लिए. आइंस्टाइन बोल रहा है कि जेरोम, अगर तुम स्कूल में होते और तुम्हारे मैथ्स टीचर ने तुम्हें एक प्रॉब्लम दिया था एरिथमेटिक में, तुमने अभी अभी नंबर सीखे और उसने तुम्हें एक प्रॉब्लम दिया है, क्वेश्चन दिया है, ऑलराइट. से इन लॉन्ग डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शन यानी डिवाइडिंग और मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉब्लम दिया है. कुड यू हैव डन इट, ऑलराइट. आइंस्टाइन पूछता है उससे, कैन यू डू दिस डायरेक्टली आफ्टर यू ओनली लर्न नंबर्स. नाउ ऑब्वियसली द आंसर विल बी नो, ऑलराइट. नो, ऑफ कोर्स नॉट. जेरोम क्या बोलता है, नो ऑफ कोर्स नॉट. तो आइंस्टाइन क्या बोलता है, एग्जैक्टली, इट इज लाइक लर्निंग मैथ्स. यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ऑलराइट. आइंस्टाइन क्या बोलने लग गया उसको कि एग्जैक्ट म्यूजिक भी मैथ्स की तरह होता है. जब तक तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सीखते तो तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं सीख सकते, ऑलराइट. यू मस्ट हैव आल्सो डन दिस इन स्कूल स्टूडेंट्स, जहाँ पे पहले तुम्हें नंबर्स सिखाए थे, नंबर्स के बाद तुम्हें वन सिंगल डिजिट एडिशन सिखाया, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, ऑलराइट. फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन सिखाया, ऑलराइट. सो आइंस्टाइन इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग. नाउ आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड, ऑलराइट. तो आइंस्टाइन क्या करता है, म्यूजिक भी मैथ, आइंस्टाइन क्या कह रहा है कि म्यूजिक भी मैथ्स की तरह होता है.
सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले लिटिल मोर एडवांस। पहले उसने बिंग क्रॉस्बी का सॉन्ग प्ले किया, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, जेरोम को भी, राइटर को भी इसके बारे में पता था। बट नाउ आइंस्टाइन सिंग, नाउ विल प्ले समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस। इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटियर। ट्रम्पेटियर यानी ट्रम्पेट बजाने वाला। ऑलराइट, सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड। ऑलराइट, तो उसने एक ज्यादा थोड़ा सा और डिफिकल्ट गाना बजाना शुरू कर दिया। एंड व्हाट डिड आइंस्टाइन से टू जेरोम? सिंग दैट बैक। राइटर को क्या बोला उसने? इसको फिर से तुम गाओ। ऑलराइट, एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल until he was playing music without words. Alright, वो यही चीज कंटिन्यूसली बार बार करते गए। जेरोम बार बार गाता रहा, आइंस्टाइन बार बार लेवल बढ़ाता गया, until the point where they was just playing music without words. जब तक वो म्यूजिक, उस तरह का म्यूजिक नहीं प्ले कर रहे थे जहाँ पे वर्ड्स नहीं है, बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक। ऑलराइट, वो उस लेवल तक पहुंच रहे थे। ऑलराइट, I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. जेरोम जो राइटर है वो बहुत शॉक्ड है। ऐसा इतना महान इंसान जो अपने कॉन्सर्ट देखने आया था अपने घर पे, वो मुझे सिखाते बैठा है यहाँ पे। ऑलराइट, वो मेरे पीछे टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? ऑलराइट, वाई इज ही पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी? ऑलराइट, सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू, ताकि मैं कुछ नया सीख सके, ताकि मैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, ताकि मैं उस म्यूजिक के बारे में जान सकूं जिसमें वर्ड्स नहीं है। ऑलराइट, इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जेरोम को कैसा लग रहा था? आइंस्टाइन मुझे सिखा रहा है, बैठ के अपना टाइम दे रहा है, अपना अटेंशन दे रहा है। इट फील्स एज इफ आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। सडनली he got up and turned off the gramophone. अचानक से now Einstein got up and he turned off the gramophone, turned off the music player. All right, now young man, he said, we're ready to listen to Bach. कॉन्सर्ट किसका म्यूजिक प्ले कर रहा था पहले, जो जेरोम को पसंद नहीं आ रहा था? बाक का म्यूजिक। ऑलराइट, बाक एक म्यूजिशियन है, याद रखो। नाउ यंग मैन, ही सेड, आइंस्टाइन ने क्या बोला उसको? ठीक है, अभी तुमने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू लिसन टू बाक। ओके, वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल, जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन, ही सेड। उसने, आइंस्टाइन ने क्या बोला उसको? सिर्फ सुनने की कोशिश करो, खुद के मन में ये बात मत रखो कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, मुझे कभी आएगा नहीं। ऑलराइट, मुझे म्यूजिक की कोई पहचान नहीं है। खुद के मन में से बात हटा दो, जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सिर्फ सुनो। ओके, उतना ही तुम्हें करना है। आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे। ऑलराइट, अभी राइटर क्या बोल रहा है? उस दिन से मैंने उस बात के पीस को मैंने बहुत बार सुना है। ऑलराइट, बट आई एम नेवर अलोन. I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. He has eyes that are unusually warm. Unusually यानी हर दिन देखने नहीं मिलता. Unusual, something that is not very common. Okay? When the concert ended, I too was able to clap sincerely. स्टोरी के पहले में क्या हुआ था? जेरोम जो है वो ताली बजा तो रहा था कॉन्सर्ट के एंड पे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बजा रहा था क्योंकि बाकी सब बजा रहे थे, उसको सिर्फ पता था कि कॉन्सर्ट खत्म हो गया। बट दिस टाइम, आफ्टर प्रैक्टिसिंग विद आइंस्टाइन एंड लिसनिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक विद आइंस्टाइन, ही वाज एबल टू क्लैप सिंसियरली, मतलब अपने दिल से वो क्लैप कर सकता था, क्योंकि उसको वो म्यूजिक अभी समझ में आ रहा था, क्लासिकल म्यूजिक समझ में आ रहा था। अ होस्टेस केम टुवर्ड्स अस, वी बोथ स्टूड अप. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक, दैट यू मिस्ड सो मच. जो होस्ट है जिसने पार्टी रखी थी, वो कॉन्सर्ट रखा था, उसने आइंस्टाइन को आके सॉरी बोला. शी वाज लाइक, आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन. और फिर वो जेरोम की तरफ देखती है गुस्से में. ऑलराइट, कोल्ड लुक यानी एक बहुत गुस्से वाले लुक में देखते हैं कि, और आइंस्टाइन को बोल रही है, लेकिन जेरोम को गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने सो मच इतना मिस किया, दैट यू मिस्ड सो मच. आई एम सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, गुस्से में देख के, दैट यू मिस्ड सो मच. नाउ आई एम सॉरी टू, ही सेड. माई यंग friend here and I, however, we were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. लेकिन आइंस्टाइन ने होस्टेस को क्या रिप्लाई दिया? जिसने वो कॉन्सर्ट रखा उसको क्या रिप्लाई दिया? उसको बोला कि आई एम सॉरी टू, कि मैं आपके कॉन्सर्ट में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाया बिकॉज आई वॉज बिजी टीचिंग दिस यंग मैन, बट माई यंग फ्रेंड एंड आई, यानी राइटर और आइंस्टाइन, वर बिजी एंगेजिंग इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन इज केपेबल. जो एक ह्यूमन सबसे बड़ा एक्टिविटी कर सकता है, सबसे ग्रेटेस्ट एक्टिविटी कर सकता है, उसके बारे में आइंस्टाइन उस होस्टेस को बताना चाहता था, उस होस्टेस को बताने की कोशिश कर रहा था. शी लुक पजल्ड,
रियली शी सेड, एंड व्हाट इज दैट? अभी वो भी क्यूरियस है कि आइंस्टाइन बोल रहा है कि इस यंग मैन के साथ मैंने इंसानियत के सबसे ग्रेटेस्ट एक्टिविटी का एक्सपीरियंस किया है. सो शी वाज आल्सो पजल्ड. शी इज लाइक, ये तो म्यूजिक भी नहीं जानता, इसकी वजह से आइंस्टाइन ने कॉन्सर्ट मिस किया. ऑलराइट, सो व्हाट कुड बी दिस ग्रेटेस्ट एक्टिविटी? And Einstein smiled and put his arm across my shoulder, opening up the frontiers of beauty. Frontiers यानी the gates or the limits. Okay, gates और limits. तो आइंस्टाइन ने जेरोम के शोल्डर के अराउंड हाथ डाला. उसने मतलब कैसे दोस्त लोग करते हैं, शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हैं. ऑलराइट, आइंस्टाइन डिड द सेम टू जेरोम एंड basically answered the hostess saying, opening the frontiers of beauty, opening the gates of beauty. अभी ओपनिंग द गेट्स ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? आइंस्टाइन के लिए क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप ऑफ म्यूजिक था. ऑलराइट, एंड क्लासिकल म्यूजिक इज क्लासिकल फॉर अ रीजन स्टूडेंट्स. ऐसे ही किसी म्यूजिक को क्लासिकल नहीं बनाते. इफ अ म्यूजिक इज ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, तभी उस म्यूजिक को ब्यूटीफुल बोलते हैं. सो व्हाट इज आइंस्टाइन सेइंग कि हमने इस इंसान को सिखाया है कि ब्यूटी का क्या लिमिट है. ऑलराइट, पहले जेरोम क्या था, उसको सिर्फ बिंग क्रॉस्बी नाम के सिंगर का म्यूजिक पसंद था. लेकिन नाउ ही वाज एबल टू लिसन टू पीपल लाइक जॉन मैक्रॉमैक, ही वाज एबल टू लिसन टू बाक, ही वाज एबल टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, पियानो के रिलेटेड म्यूजिक, म्यूजिक विदाउट वर्ड्स. ऑलराइट, और इससे क्या हो गया कि उसके लिमिट्स ऑफ ब्यूटी जो था, उसका जो क्या ब्यूटीफुल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका जो है वो स्कोप बढ़ गया. ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाट आइंस्टाइन वाज द मोस्ट हैप्पी अबाउट, कि आज इस जेरोम, इस राइटर का जो आँख है वो खुल चुका है टू मोर ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ. ओके, एंड स्टूडेंट्स, this brings us to the end of our chapter. Thank you so much for listening to the narration. Students, I would suggest you to complete these questions. The first one is complete the following sentences. All right, complete the following sentences नाम का ये एक्टिविटी है, इसको पूरा करना है तुम्हें. देन who said to whom. ऑल राइट, ये who said to whom वाला जो एक्टिविटी है तुम्हें इसको पूरा करना है. ऑल राइट, एंड विद दैट योर वर्क फॉर टुडे विल बी कंप्लीट. याद रखना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड who said to whom क्वेश्चन नंबर 2. इन दोनों को तुम्हें आज करना है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.